Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is state liability, which is somewhere related to vicarious liability, putting certain amount of legal responsibilities on the government because of the acts or the omission committed by their servants. In the course of today's video, we will understand what is state's liability, in which cases it can be made applicable, and we will be looking at certain case laws which are pre-constitutional and post-constitutional. And without further ado, let's look into the PPT. So now we have jumped into the PPT of the state liability. The state liability for the acts of omission and commission committed by its servants, not being a static concept, has been governed by written or unwritten laws. Liability of state for the tortious acts of its servants, known as tortious liability of the state, makes it liable for the acts of omission and commission voluntarily or involuntarily and brings it before the court of law in the claim for non-liquidated damages for such acts. यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि स्टेट की लायबिलिटी उस जगह पे खड़ी होगी जब उसके सर्वेंट्स ने ऐसा कोई भी काम किया होगा जो गलत है, या तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया होगा जो उसे करना चाहिए था. यहाँ पे एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन की बात की है कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सर्वेंट ये सब चीज़ें करता है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, तो उसके लिए स्टेट को लायबल माना जाएगा. स्टेट को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने खड़ा किया जाएगा और उनके सामने से नॉन लिक्विडेटेड डैमेजेस कवर किए जाएंगे. दिस लायबिलिटी इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स लाइक वेरियस अदर लॉ हैज़ ट्रैवल्ड टू दिस कंट्री थ्रू द ब्रिटिश इन इंडिया and now stands varied due to being regulated by certain local laws and constitutional provisions. कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है स्टेट लायबिलिटी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कंसेप्ट जो कि ब्रिटिशर्स के थ्रू इंडिया के अंदर आया था विथ लॉ ऑफ टॉर्ट्स. ओके, the term administration is used here synonymously with state or government. To what extent the administration would be liable for torts committed by its servant is a complex problem, especially in developing countries with a ever-widening state activities. यहाँ पे ये बोला गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट को एक साथ में हर बार लिया जाता है, इवन दो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग अलग हैं. ठीक है, बट यहाँ पे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है कि जहाँ पे स्टेट को फॉर डेली बेसिस कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर के गोल्स अचीव हो सके. इन डूइंग दिस कभी कभी उनके सर्वेंट्स कुछ गलत काम कर देते हैं जिसकी वजह से स्टेट को हर बार सुनना पड़ता है, उनको लायबल माना जाता है. द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन टॉर्ट इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लॉ इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमन लॉ एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Article 300 of Constitution of India states that the state of India may be sued or sue somebody. So यहाँ पे ये आर्टिकल 300 भी यही बोलता है कि इंडिया एज अ कंट्री कैन sue और बी sued. ऑलराइट, तो स्टेट किसी के सामने केस फाइल भी कर सकता है, उनके ऊपर भी केस फाइल हो सकता है. This whole idea of vicarious liability of the state for torts committed by its servant is based upon three principles: रेस्पोंडेंट सुपीरियर एंड क्वाई फैसेट पर एलियन फैसेट पर से. ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने वाइकरियस लायबिलिटी में देखी थी, लेकिन यहाँ पे एक थर्ड चीज़ ऐड होती है, दैट इज सोशलाइजेशन ऑफ कॉम्पनसेशन. ओके, सबसे पहले आता है रेस्पोंडेंट सुपीरियर लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वॉज ब्रॉट थ्रू द प्रेमाइसिस ऑफ द सबऑर्डिनेट लिमिटेड इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड irresponsible behavior of superiors such as masters or employees was controlled. This doctrine is based on the public policy since it aims to assign the risk usually associated with it to the business. When applying this doctrine, an employer and the master are liable for the negligent commission or omissions of an employee and the servant which occur during the employment. Nevertheless, a relationship between superior and subordinate should be established for the liability to fall upon the superiors. यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि रेस्पोंडेंट सुपीरियर कि जो कोई भी मास्टर है या जो कोई भी सुपीरियर है ऑफ पर्टिकुलर सर्वेंट और एम्प्लॉई, उस बंदे को जवाब देना पड़ेगा फॉर द एक्शंस कमिटेड बाय देयर सर्वेंट और देयर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स.
स्टेट में भी ऐसा होता है कि जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कुछ भी गलत काम करता है, कुछ भी क्राइम करता है, कुछ भी ऑफेंस करता है इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी, यहाँ पे वो हर एक चीज़ें लागू की जाएंगी। जैसे कि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, कि वो एक प्रॉपर सर्वेंट होना चाहिए, बोरोड सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल मानी जाएंगी। अगर ये सब चीज़ें फुलफिल होती हैं तो द सुपीरियर विल बी लायबल। Actions performed by the subordinates during their job or agency under an employer or a master's explicit or implied authority respectively, जहाँ पे दो रिक्वायरमेंट्स की बात की गई है टू अप्लाई रेस्पोंडेंट सुपीरियर। पहला है अ ट्रू मास्टर सर्वेंट एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कि वहाँ पे वो एक मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना चाहिए। उसके बाद दूसरे में ऐसा बोला है कि द टॉर्टियस एक्ट ऑफ अ सर्वेंट एंड एन एम्प्लॉय मस्ट बी वन विद इन द स्कोप ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एक्ट परफॉर्म्ड अंडर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर्स, की जो पर्टिकुलर एक्ट उसने किया है उसका सुपरविजन जो भी है वो उनके सुपीरियर्स के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, उसका कहते हैं इन द केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स ट्रांसपोर्ट वर्सेस देवाला एंड अदर्स, the Rajasthan High Court held that there is always the presumption that a vehicle is driven on order of the driver or by his approved agent or servant, and it is up to the appellant to prove that such presumption is unjustified or not confirmed. यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई भी एक एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी इज ड्राइविंग अ व्हीकल, वो कोई भी व्हीकल हो सकता है, वो लोरी हो सकती है या 4 व्हीलर हो सकता है, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ किसी भी इंडियन रोड्स के ऊपर चला रहा है, उससे कुछ भी एक्सीडेंट या उससे कुछ भी हादसा होता है तो प्राइमरीली ऐसा ही माना जाएगा, प्रिजम्पशन है कि जो कोई भी ड्राइवर था उसने अपने सुपीरियर की या तो फिर अपने मास्टर की अथॉरिटी से ही ये कार यहाँ से लेके गया था। ये उनके ऊपर है प्रूव करना कि जो कोई भी ड्राइवर है वो विदाउट परमिशन लेके चला गया है। अदरवाइज कोर्ट विल ऑलवेज प्रिज्यूम कि सुपीरियर की अथॉरिटी और कंसेंट था। Okay. In the case of Srimati Savita Garg versus the director National Heart Institute, the Supreme Court held that in the employment contract, the hospital is the principal responsible for the actions of the agent, that is, one of his doctors. If the court and the complainant are unable to justify that there was no negligence or recklessness on their part and that they were acting with due care and caution, यहाँ पे भी सेम चीज़ बोली गई है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्टर एंड हॉस्पिटल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर जो कोई भी हॉस्पिटल है वो ये चीज़ प्रूव नहीं कर पाती कि जो कुछ भी गलती थी वो डॉक्टर की खुद की थी, ना कि एज अ हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल को ही लायबल किया जाएगा फॉर द नेग्लिजेंट और रेकलेस एक्ट। ऑलराइट, क्वे फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, he who acts through another does it himself। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कोई भी बंदा किसी और के थ्रू काम करवाता है, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो काम उसने खुद किया है। क्वे फैसेट पर एलियम फैसेट पर से is a fundamental statutory maxim of agency law. It is a maxim frequently stated when discussing the employer's liability for the employee's action as regards vicarious liability. According to this maxim, by employing servants, the master is obligated to perform the duties. He is responsible for their actions in the same way as he is responsible for his actions. Indirectly, in the role portrayed by the agent, the concept is in the practice or present such that the role performed is seen as the work of the agent himself. Anything that a principal can do itself can be done through an agent. The exception to that maxim would be personal acts of nature. इस पर्टिकुलर मैगजीन में यही बोला गया है कि कोई भी प्रिंसिपल अपने एजेंट के थ्रू कुछ भी काम करवाना चाहता है, इसका मतलब यही होगा कि वो काम अगर सही हुआ या गलत हुआ, उसकी या तो शाबाशी या तो डांट प्रिंसिपल को ही मिलेगी। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजिवली एक बंदे ने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई ये तू कार टेम्पररी लेके जा, ठीक है, मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलाना है तो इस चीज़ को यूज़ करना, अदरवाइज़ इसको कवर में ढक के रहने देना। ठीक है,
अभी यहाँ पे जो दोस्त है ये बंदे का, वो हो जाएगा एजेंट, जो बाहर घूमने जा रहा है वो हो जाएगा प्रिंसिपल। उन्होंने कार की चाबी अपने एजेंट को दे दी। अभी एजेंट ने वो पर्टिकुलर कार की चाबी अपने बेटे को दे दी कि बेटा ये मेरे दोस्त की कार है, उन्होंने बोला है कि जहाँ अगर अपने को घूमने का मन हो तो इसको लेके निकल जाना। लेकिन प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि चाबी मैं आपको दे रहा हूँ, आप ही चलाना और कोई इस चीज़ को ना ड्राइव करें, आप उस चीज़ का ध्यान रखें। एजेंट ने वो चीज़ नेगलेक्ट की, अपने बेटे को गाड़ी दी थी और गाड़ी से एक हादसा हो गया। तो यहाँ पे जो कोई भी एजेंट है वो इंडिविजुअली लायबल रहेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर वो गाड़ी से हादसा होता, मतलब एजेंट ने खुद ही वो कार ड्राइव की थी, उनसे हादसा होता, तो एजेंट की जगह प्रिंसिपल लायबल होते, क्योंकि यहाँ पे यही बोला है कि ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर डज इट हिमसेल्फ, कि वो खुद से ही काम करवा रहे हैं। इन एच.ई. नासिर Abdullah Hussain versus District City or Tenant of Law canonized the dictatum que facit per alium facit per se. It was held in the case of Balwadas Agrawala versus Sri J.C. Chakravarti that the sections vicariously fasten the responsibility of the masters for the act of their servant। कि यहाँ पे भी इन लोगों ने ये बोला कि ये चीज़ काफ़ी अग्रेसिवली सर्वेंट्स के एक्ट के लिए मास्टर्स को लायबल गिनती है। In KTMS Mohammed and another Union of India, it was held that the Income Tax Act is a self-contained code which is exhaustive of the matters dealt with, and its provision portray an intention to depart from the common rule of quae facit alium facit per se। कि यहाँ पे इन्होंने ये बोला है दैट इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि इनकम टैक्स एक्ट जो भी है वो एक सेल्फ कंटेन्ड कोड है, कि जहाँ पे जो बंदे ने कोई भी ऐसा गलत काम किया है डायरेक्टली उसी को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ना कि उनके मास्टर्स को। अगर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग फर्म के अंदर किसी भी एम्प्लॉई के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं तो उस चीज़ को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सोली लायबल मान के चला जाता है, ना कि पूरे के पूरी अकाउंटिंग फर्म को, ठीक है। कॉम्पनसेशन बाय स्टेट। The word tort or civil wrong, the violation of legal obligation, has been defined in Chambers Dictionary in the following words. Tort is any wrong or injury not arising out of the contract for which there is a remedy by compensation or damages. Therefore, the tort occurs either from infringement of no contractual obligation or from neglect of civil duty. In other words, a tort is a civil wrong for which damages are the only remedy. The breach of obligation towards the people in general is the basic prerequisite for the execution of the tort. Though tort is a civil wrong, it be wrong to imply that all civil mistakes are tort। यहाँ पे ये बोला गया है दैट जब कभी भी एक टॉर्ट कमिट होता है, जिस बंदे ने भी ये टॉर्ट कमिट किया है उसको सामने वाले बंदे को डैमेजेस देने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन। एक लीगल रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी फॉर द हार्म दैट हैज़ बीन कॉज्ड, या तो फिर जो इंजरी अकर हुई है उस चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर लीगल रेमेडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पे नीचे की लाइन में ये भी लिखा गया है दैट इवन दो टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, नॉट ऑल सिविल मिस्टेक्स आर टॉर्ट। कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जो है उस चीज़ को हम हर बार एक टॉर्ट में कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing, okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things, okay. Then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture.
If the agreement with the government is null and void according to the Article 299(1), the party obtaining the advantage under that agreement is obligated to restore it or indemnify the individual from whom it was obtained. यहाँ पे इंडेमनीफाई करने की बात की, अगर वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो चुका है तो सर्वेंट के एक्ट के लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होगी. Therefore, a contractor agrees with the government to construct the down payment received and the agreement is found to be void as the conditions of Article 299(1) have not been met. The government may recover the amount advanced to the contractor according to Section 65 of the Indian Contract Act. Section 65 provides that if an agreement is found to be invalid or contract is invalid, any person who has received any benefit under such agreement or a contract is obligated to restore it and compensate the person from whom it was received. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर नल एंड वॉइड होता है तो जिस बंदे ने भी कुछ भी ऐसा डाउन पेमेंट लिया है, किसी भी प्रकार का रेन्यूमरेशन रिसीव किया है, तो वो चीज़ उसको रिटर्न करनी पड़ेगी. प्लस उनको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कि दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन वहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा. तब इन सब सिनारियोज के अंदर गवर्नमेंट विल नॉट बी लायबल. अदरवाइज अगर दोनों पार्टीज़ के बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन एग्जिस्टिंग है, ठीक है, बाकी सारी की वाइकेरियस लायबिलिटी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो गवर्नमेंट विल बी लायबल, जिनको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा. In Lucknow Development Authority versus M.K. Gupta, the Supreme Court observed that when the public servant causes injustice and pain to the common man, malafidely and capricious acts while discharging official duties, it makes the state liable to pay damages from the public funds to aggrieved individual. The state is constitutionally obligated to recover the reimbursement sum from the public servant in question. यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट किसी भी एक कॉमन मैन को विथ मालाफाइड इंटेंशन गलत काम करके किसी भी प्रकार की इंजरी पहुंचाता है, तो स्टेट विल बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द अग्रीव्ड पार्टी. बट यहाँ पे स्टेट के पास एक और रेमेडी है कि जितना भी कॉम्पनसेशन स्टेट ने अग्रीव्ड पर्सन को दिया है ड्यू टू द एक्ट ऑफ सर्वेंट या तो उनके कोई भी सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स, वो पर्टिकुलर अमाउंट उनसे आप रीइम्बर्स करवा सकते हैं. ठीक है, मतलब स्टेट खुद उस सर्वेंट की गलती को रीइम्बर्स कर सकता है उनके ऊपर केस करके या उनके साथ डीलिंग्स करके कि आपको इतना अमाउंट हमें वापस देना पड़ेगा. फिर यहाँ पे दो टाइप के केस लॉज हैं हमारे सामने, प्री कॉन्स्टिट्यूशन, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. In Peninsular and Oriented Steam Navigation Company Secretary, the rule that was deduced in this case states the East India Company is excluded from the risk arising due to any action taken in operation of sovereign capacities. It drew a significantly strong distinction between state sovereign and non-sovereign elements. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जहाँ पे कोर्ट ने सोवेरियन, स्टेट सोवेरियन एंड नॉन सोवेरियन एलिमेंट्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन खड़ा किया था. इस पर्टिकुलर केस के अंदर हुआ था ये दैट एक बंदा जो है वो घोड़े पे सवार होके गवर्नमेंट के पोर्च के पास से जा रहा था, जो कि एक डॉक यार्ड है जहाँ पे काफ़ी सारे शिप्स और काफ़ी सारा कार्गो एरिया रहता है. उस पर्टिकुलर जगह पे जब एक कार्गो के बॉक्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था जो कि फुल ऑफ आयरन था, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते वक्त वो उनके सर्वेंट की वजह से नेग्लिजेंटली नीचे गिर गया. उस चीज़ को देख के घोड़ा दौड़ने लगा और आगे जाके टकरा गया, जिसकी वजह से घोड़े को भी चोट आई और जो उसके ऊपर सवार था उसको भी चोट आई. घोड़े सवार ने गवर्नमेंट के ऊपर केस किया. उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो उनके ऊपर केस किया कि बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंट एक्ट ऑफ योर सर्वेंट आई हैड टू सफ़र. ऑलराइट, तब कोर्ट ने यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन दिया कि अगर वो पर्टिकुलर एक्ट जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बिजनेस पर्पस के लिए था तो वहाँ पे अलग लायबिलिटी क्रिएट होगी, और अगर वो एक ऑफिशियल सोवरेन फंक्शन के लिए था तो वहाँ पे अलग लायबिलिटी क्रिएट होगी. ये एक पर्टिकुलर चीज़ से हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि कोई भी एंटिटी भले ही गवर्नमेंट की हो या ना हो, कोई भी प्राइवेट एंटिटी हो या ना हो, बट विथ द हेल्प ऑफ स्टेट सोवरेन एंड नॉन सोवरेन एलिमेंट्स हम ये चीज़ को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी लगेगी
या किसी और इंडिविजुअल एंटिटी या किसी और इंडिविजुअल के ऊपर लायबिलिटी लगेगी. द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वर्सेस हरि भांजी, द मद्रास हाई कोर्ट रूल्ड दैट द invulnerability of the state should be kept to state activities. The decision did not go beyond the state actions in the P and O cases while providing representation of circumstances where the invulnerability was available. इस पर्टिकुलर केस में यही बोला गया था दैट कोई भी ऐसा एक्ट जो भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ हो, भले ही अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, उस टाइम पे भी जो कोई भी एक्ट्स हुए थे उस चीज़ के लिए आज भी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है दैट विल बी लायबल, बिकॉज उस टाइम पे जो एक्ट हुए थे या जो गलतियां हुई थी दैट टू डन विद द सोवरेन पावर्स जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो लायबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट ही रहेगी. कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द डिसीजन ऑफ द फॉर द सिचुएशन वाज गिवन holding that the act which offered to ascend to the present claim for damages was presented throughout its business by respondent's representative. That work had a place with a class of sovereign powers evacuating only state liability. ये पर्टिकुलर केस भी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के टाइम का ही है कि जब वहाँ पे एक पर्टिकुलर ज्वेलर के बंदे को अरेस्ट किया गया था बाय पुलिस ऑफिसर, जिसके पास से अराउंड 103 तोलाज ऑफ गोल्ड वर फाउंड एज वेल एज 2 kgs ऑफ सिल्वर. सिल्वर वॉज अल्टीमेटली रिटर्न एंड ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल. बट जो वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर था वो बंदे ने वो जितना भी सोना था उस चीज़ को लेके वो पाकिस्तान चला गया. एज एट दैट टाइम इट वॉज अलाउड टू गो टू पाकिस्तान और टू कम बैक टू इंडिया. ठीक है, तो वो बंदा पाकिस्तान भाग गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट वॉज स्टिल लायबल, क्योंकि वो एज अ पुलिस ऑफिसर स्टेट के अंडर काम कर रहा था. ठीक है. इन केशोरम पोदार वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट स्टेट इम्यूनिटी रिक्वायरमेंट इन टॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेन एंड नॉन सोवरेन ड्यूटीज. It decided that an immunity can only be claimed for state action if the act in question was done in the course of existing sovereign functions. यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टेट को इम्यूनिटी मिल सकती है कि अगर वो पर्टिकुलर जो कोई भी काम, जो कोई भी टॉर्टियस एक्ट एक बंदे ने किया है वो गलत था और उसके प्राइवेट नेचर का था. इवन दो इट वाज एक्सरसाइज इन द सोवरेन फंक्शंस, अगर वो प्राइवेट एक्ट है, उसका कोई प्राइवेट इंटेंशन द इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ को हम वहाँ पे स्टेट को इम्यूनिटी मिल सकती है. In the case of Union of India versus Harbans Singh, it was deduced that damages can be recovered when a man was assassinated due to the obligatory military driver's rash and careless driving of a military truck. Because it was a sovereign capacity in the particular government was liable. In the case of the Secretary of State versus Cockcraft, the offended party was hurt by a reckless removal of a pile of a rock from the military street he was walking over. The lawsuit against the government was not viable in the light of the fact that the military and military street maintenance were a sovereign rather than a private capacity. कि यहाँ पे नीचे वाले केस में ये बोला गया था कि जो कोई भी एक पाइल रिमूव किया गया था दैट वाज मोर ऑफ अ मेंटेनेंस एक्ट बाय द मिलिटरी. ठीक है, ना कि वो कोई एक प्राइवेट कैपेसिटी में कोई भी एक एक्ट किया गया था, इसलिए वो चीज़ को लायबल नहीं माना जाएगा. वायरस जो ऊपर एक केस है कि जहाँ पे एक बंदे की जान चली गई थी ड्यू टू द रैश ड्राइविंग ऑफ अ मिलिट्री ट्रक, वहाँ पे डेफिनेटली गवर्नमेंट को लायबल किया गया था. ठीक है. सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर. आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर एंड आई होप यू गाइस हैव गेट समथिंग आउट ऑफ इट. प्लीज़ join us with our Instagram page and Telegram channels, Judicial Dream, and please go on our website. We will daily upload a lot of articles and a lot of MCQs as well as videos like this. Please stay in touch with us. Thank you very much and have a good day.